And therefore, my last word would be that the next destination for India is Viksit Bharat 2047. And the next agenda would be POJK, which also can happen only through Modi. Now, as far as I am concerned, the story of contemporary Jammu and Kashmir begins with the partition of the Indian subcontinent. I've said this many a time, and the media has also been fondly reporting it, that the greatest blunder of the recent history of India was the partition of India. और उससे वो इस वजह से हुआ कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, खासतौर से पुलवामा के बाद, Prime Minister Modi gave the defense forces full freedom to act professionally, depending on their discretion, depending on the requirement of circumstances, as and when required, without any political consideration. अदरवाइज आप 2014 से पहले के जितने भी हमारे कोर क्वार्टर्स रहे हैं, सबसे पूछिए, हिदायत थी, द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दैट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ऑफ और ऑन अ प्लेटर POJK वाज गिवन. जब हमारी फौज वहां पहुंच गई, मीरपुर कोटली हमारे कब्जे में आने वाला था, सडनली पंडित जी वेंट टू दी आकाशवाणी भवन एंड मेड अ यूनिलैटरल स्टेटमेंट दैट लुक हियर वी आर डिक्लेयरिंग सीज फायर. अगर एक दिन और रुके होते तो आज POJK ना होता और ये मसला ही खत्म हो गया होता उसी के समय. सो एट द आउटसेट आई हैव टू स्टार्ट बाय थैंकिंग डॉक्टर Sabharwal for sending me this book just 3 days back. It's not only been a very enriching experience, it has also been a very good companion for me for the last 3 days. Because I'm in the habit of carrying 2 books with me and I'm traveling almost every third day. और जो नई किताब आती है मार्केट में, तो मेरे साथ 2 किताबें थी उस समय. एक बस्ती एंड दरबार बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली की कहानियों पर, वो भी 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई है. और दूसरी थी अरुण शौर्य जी ने जो लिखी सावरकर पर. So I got as a bonus the 3rd book to carry with me. So the last 4 days I had abundant opportunity. In fact, I was traveling from Mussoorie to Delhi last evening and I could find time actually to go through some very valuable parts of the book. And I must say, this is Kashmir Chronicles is a book which is well documented, well chronicled, and very well researched. And this 491 page account, I think this is an outcome which could have been possible only through someone like Dr. Sabharwal. But since he is a scientist and so am I of sorts, so I'll give you a scientific reason why I'm saying so, not only to compliment him. Because this book has been written by someone who is not a professional writer, written by someone who is not a professional author, written by someone who is not a professional journalist. And Francis Bacon, the famous English writer, once said that the greatest harm to the cause of literature is done by the teachers of literature. So when a professional writes a book, he is doing it with a tutored agenda. But here it's an account which is unbiased, which is very objective, and only a scientist could have done this. And that is evident once, if you don't know that he has written it, but if you go through the book, the manner it has been researched and chronicled and also supported with very documented evidence would make it clear or make you suspect that there is someone with a scientific background. So compliment Dr. Sabharwal for giving us a different flavor. Over the years, there have been a number of books on Kashmir by Indian authors, by American authors, by Pakistan authors, by Commonwealth authors, by British authors, by victims of Indian victims of partition, by Pakistan victims of partition, by victims of Kashmiri Pandit exodus, by journalists. But the difference with your book is that A, of course, it is one of the latest books released only in February 2024. And it is by an author who has been witness to these march of events in Jammu and Kashmir, both as an insider and also as an outsider. So I think that was a unique privilege
which destiny granted on you, willingly or unwillingly, but you made the best use of it. And therefore, it is above all kinds of biases and all kinds of predetermined notions. And through this book, you have the privilege of getting a perspective which is seen from close quarters, which he has done in his earlier years, and also perspective of how it appears when it is seen from a distance. So that unique opportunity was available only to him, and I'm glad that for the benefit of all, he has created this piece of work. Now, as far as I am concerned, the story of contemporary Jammu and Kashmir begins with the partition of the Indian subcontinent. I've said this many a time, and the media has also been fondly reporting it, that the greatest blunder of the recent history of India was the partition of India. And the contradiction is कि partition की किसी ने डिमांड नहीं की. You've seen countries dividing into two. You saw Korea happening, you saw Germany happening. Then you saw countries merging, but each time it was demand coming from some section of society. Now this is a unique case, and I know why this is not being researched so far, कि एक भी common sections of society से आवाज नहीं उठी थी बंटवारे के लिए. Not even from the Muslim community. बल्कि they formed a forum called Progressive Writers Platform, comprising of mostly, उसमें मुस्लिम दानिश्वर भी थे, अदीब भी थे, साहित्यकार भी थे. They had very vehemently opposed it. साहिर लुधियानवी भी उसके मेंबर रहे, सदस्य रहे, कैफी आजमी, अली सरदार जाफरी, और साहिर कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान चले गए, उनके कोई दोस्त गए तो वो भी चले गए, लेकिन 2-1 साल के बाद वापस आ गए. एंड इन डिस्गस्ट ही रोड के वो वक्त गया, वो दौर गया जब दो कौमों का नारा था, वो लोग गए इस धरती से जिनका मकसद बंटवारा था. He was so much disgusted का इट्स अ गुड रिडल्स, इनसे निजात मिली, जो बंटवारा करते थे वहीं गए. एंड साइमल्टेनियसली ऑलमोस्ट फैज फ्रॉम दैट साइड रोड के ये दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर नहीं. When he saw the riots happening. तो फिर ये बंटवारा हुआ क्यों? Just to satisfy the political ambition of two individuals, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो नहीं सकते थे, तो 2 देश बनाने लाजिम थे. And it suited the designs of Viceroy Lord Mountbatten and also the British designs. और जल्दबाजी में वो लकीर खींच दी, रेडक्लिफ लाइन. I know how many of us know Redcliffe was a वकील, he was an attorney who was brought specially to Delhi for this purpose. He just spent 30 days here, didn't move out of Delhi, but he was very intelligent. उसको डेमोग्राफी स्टडी करके उसने लाइन ड्रॉ की, और उसको मालूम था कि इसका बाद में क्या होगा. So before leaving, there is a letter written by him to his family that I am soon moving out of Delhi before at least 1 million homeless people come looking after my blood. मालूम था कि इतने सारे लोग बेघर हो गए. तो कहने का तात्पर्य ये पहले बंटवारा. अब जम्मू कश्मीर की दुविधा ये रही कि इट हैज बीन विक्टिम ऑफ नॉट 1 but 2 पार्टीशंस. अब वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो बाकी राजाओं ने जिस पर हस्ताक्षर किए वही महाराजा हरि सिंह ने किए. बार बार ये कहा जा रहा है कि उसका डाउट है, नो वाई. There was a vested interest, of course, which all of us like-minded people have been saying time and again. Or on a platter, POJK was given. जब हमारी फौज वहाँ पहुँच गई, मीरपुर कोटली हमारे कब्जे में आने वाला था, suddenly पंडित जी went to the Akashvani Bhavan and made a unilateral statement that look here we are declaring ceasefire. अगर एक दिन और रुके होते तो आज POJK ना होता और ये मसला ही खत्म हो गया होता उसी के समय. तो यानी एक पार्टीशन हुई जिसके अंतर्गत हमें वहाँ पश्चिम पाकिस्तान से इतनी भारी संख्या में शरणार्थी आए, और दूसरी हो गया ये POJK. And that was the first Nehruvian blunder as far as J&K is concerned.
The second was carrying this issue to UN. It was not required. The third was Article 370. बावजूद इसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा है कि वी कैन गिव अ रीथिंकिंग। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप चिंता ना करिए, घिसते घिसते घिस जाएगी, बट नहीं हुआ। उन्हीं के जो अनुयायी हैं, उन्हीं के जो सक्सेसर है, उन्होंने उसको घिसने नहीं दिया, उसको पक्का किया। और उसको घिसाने का काम अगर हुआ तो 5 और 6 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और चौथा, Nehruvian blunder vis-a-vis Jammu Kashmir is what we are discussing these days. The television also anchors are now all of them have turned Kashmir experts. जब से सिंदूर हुआ is Indus Water Treaty. ये आज की बात नहीं है, हम कई सालों से कह रहे हैं कि this was an unfair treaty. It was done in haste. The then Prime Minister was in a haste to buy peace with Pakistan. आपने कभी सोचा जो 3 दरिया उनको दिए, they are the biggest rivers of India except Brahmaputra. Now we have learned to talk with scientific evidence. ब्रह्मपुत्र हमारा लार्जेस्ट रिवर है, उसके बाद हमारा सिंधु, झेलम, चिनाब, वो तीनों उनको दे दिए। और अपने पास आपने रखा ब्यास, सतलुज और रावी। ब्यास, सतलुज इज लाइक आपकी यमुना, गोमती, और उन तीनों दरियाओं के किनारे पे सिविलाइजेशंस बसी हैं। और आपके पास बड़ा दरिया आया रावी, और आप कहते रहे कि पाकिस्तान का पानी रोक दो, लेकिन हकीकत ये कि हमारा पानी भी पाकिस्तान में जाता है। रावी के ऊपर भी आप डैम ना बना सके 70 साल, ये भी अभी, एंड इंसिडेंटली दैट वाज पार्ट ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ पंजाब। तो शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट 2019 में शुरू करवाया गया, क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री जी के आगे बात रखी गई तो फिर से इसके सारे दस्तावेज तैयार हुए। नाउ इट्स अबाउट टू गेट कंप्लीटेड लास्ट फेज। यानी एक तरफ तो ये हुआ द इंडस वाटर ट्रीटी डन इन हेस्ट, दूसरी तरफ एज डॉक्टर सदवाल वाज सेइंग, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिसाइसिवनेस ऑन द पार्ट ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स व्हिच वर नॉट स्टेबल, you could not utilize even the water which was your share. So we were losers on both the accounts. And at the same time, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान never reconciled J&K becoming part of India. And for anyone to sustain in the seat of power in Islamabad, it is essential to keep harping on the name of Kashmir. वो जनरल मीर ने उस दिन ठीक कहा कि कश्मीर इज आवर जुगुलर वेन। वाकई है, वहां कोई भी बैठेगा, और जिस दिन वो जुगुलर वेन को छोड़ देगा, नॉट ओनली हिज सीट ऑफ पावर, हिज लाइफ विल बी ऑल्सो इन पेरिल। आपने भुट्टो का अशर देखा, उनको इन्होंने खुद ही मार दिया। ज़ियाउल हक का अशर देखा, मुशर्रफ वॉज वेरी स्मार्ट, वो लंदन चले गए, उनको भी मालूम था कि जो हमने बाकी लोगों के साथ किया हमारे साथ भी होगा। इमरान खान अभी अंदर है, नवाज शरीफ का पता नहीं कब क्या हो जाए। सो विद आर्मी कॉलिंग द शॉट्स, and therefore they tried the conventional war 65, 71, 99. Then Ziaul Haq gave this 1000 wound theory, and the second missed opportunity was the Shimla agreement. उस समय हमें बड़े यूफोरिक लगा कि पाकिस्तान तो हो दिया, लेकिन 90,000 से अधिक सैनिक भी वापस किए, टेरिटरी जो थी वो भी वापस की। एटलीस्ट एट दैट टाइम वी कुड हैव बार्गेन्ड, ओके वी विल गिव यू ऑल दिस ट्रूप्स बैक, यू गिव अस पीओजेके, लेकिन नहीं किया। एंड भुट्टो वेरी इजीली मैनेज टू कन्विंस मिसेस गांधी कि मुझे कुछ लेके जाना है, मैं घर जाके जाऊंगा तो थोड़ा सा करूँगा, उसके बाद हम सब हमारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। एंड यू नो व्हेन वी वेंट बैक ही टोल्ड हिज कलीग्स, आई हैव मेड अ गुड फूल ऑफ हर। तो बताइए। सो now the point here is that, and then of course the 1994 की resolution which he was mentioning, and the attack on Pakistan, and the motivation handle used for this internal warfare has been, whether we accept or not, whether there is criticism when you say this, a huge amount of Islamic doctrinization. And the first major fallout of that was the exodus of the Kashmiri Pandits.
जैसे मैंने कहा, इससे बड़ा कभी एक्सोडस नहीं हुआ except for the partition when there was a change of population. But again, the difference is that during the partition of the subcontinent, new country had been created and there was an option to live in either of the two. So they were sometimes moving out of voluntary preference. Here they were wounded out of home and earth and they were not moving to another country, they were being rendered homeless within their own country. लेकिन उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने कहा साहब ये जगमोहन इनको प्लॉट लेने जा रहा है। मैंने उस दिन भी, जब शायद अश्विनी तब वही थे, 1991 में जब पहला सम्मेलन हुआ हमारा गांधी भवन में, तो मैंने उस समय एक शेर कहा था कि बेसबब लोग बदलते नहीं मनसक अपना, तुमने देखा है जलता हुआ नशे मन अपना। Unless you see your house on fire, you would not know what it means to say so. So, the exodus of Kashmiri Pandit was not per se exodus of Kashmiri Pandit. It's not that we are saying this because we belong to the community or we are sympathetic. It was actually an assault on the very culture that Kashmir stood for. The composite tradition of Kashmir. उस पर प्रहार हुआ. And in fact, way back, about 20 years back, I had the courage in Srinagar to share with some of my Muslim colleagues. मैंने कहा एक दिन आएगा, हम रहे आप ना रहे, ये याद रखिएगा कि पछतावा कश्मीरी पंडित से ज़्यादा आपको होगा कश्मीरी पंडित के यहाँ से जाने का, क्योंकि कश्मीरी पंडित was adding the ingredients of intellect, erudition, education, culture, learning, literature, ethos to the Kashmiri tradition. वो सारा खत्म हो गया. And the upbringing of the children there, if you see closely, they may not say so, is not wholesome. और इसलिए ये सिर्फ पंडित का ही कहानी नहीं है. I wish someday somebody would also, apparently it could be a physical assault on Kashmiri Pandit, but the assault is much larger than that. But as Dr. Sazawal writes in his book, page number 475, जिनके हाथ में पड़ी, very rightly so. So 475 he writes, and I quote, 700 years from now, I have no doubt that Pandits will rise to international eminence everywhere, every bit, just as Parsis have. जो मैंने इससे पहले बात कही कि एक दिन उनको नुकसान महसूस होगा, वो इस बात में दर्शाएगा. आज आप कहीं भी जाइए, आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है, चाहे वो किसी भी व्यथा से गुजरे हो, किसी वेदना से, whatever have been the hardship. We see Kashmiri Pandit young boys and girls, occupying top positions in multinationals, in tourism sector, in the hotel sector, across the world. जैसे इन्होंने ठीक कहा, भाई उसने कहा तो पंडित तो हर जगह रहते हैं, तो भाई यहाँ फोन करने की क्या जरूरत है. ये स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल, ये यही था, ये वहां नहीं है. और आखिर में the concluding lines of this book are also to be remembered for future reference. When Dr. Sazwal writes, yes, Pandits within Kashmir and Pandits outside Kashmir will survive and thrive for generations to come. तो आप तो सर्वाइव हो गए, हम तो हो गए, लेकिन उनका क्या हुआ जो पीछे रह गए? दिस विल बी रियलाइज्ड आफ्टर वन मोर जनरेशन. एंड देयरफॉर राइटली सेड द कश्मीरी पंडित्स, जैसे मैंने कहा कि आज इस्लामिक डॉक्ट्रिनाइजेशन, अगर इसकी रीट्रेशन चाहिए थी तो आपको नजर आई पहलगाम में, जहां मजहब पूछ पूछ करके मारा गया. जो लोग हमारी बात पर यकीन नहीं करते थे, और मोहन भागवत जी ने कहा मैं वहीं तक रखूंगा क्योंकि फिर मेरी बात ज़्यादा करना आउट ऑफ टर्न हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर हिंदू होते तो शायद ऐसा ना करते. सो हाउ कैन यू डिनाई व्हाट हैज हैपेंड? आई एम अमंग दोज, वी आर अमंग दोज हु हैव ऑलवेज सेड terrorism has no religion. But why is this coincidence
that a particular religion gets associated with terrorism. And I leave it at that. We can go home and quietly think and find the answers. And therefore, Pahalgam was one more vindication of what we have been saying for several decades now. हमेशा हम ये कहते रहे कि there is no such issue as Kashmir issue. हम 30 साल पहले भी मैं यही कहता था कि जम्मू कश्मीर इज लाइक एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया, जैसे पंजाब है, जैसे अदर, कह के आपने उसको इशू बना दिया। एक बार 1965 की जंग के बाद जब प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी तो उस समय प्रेसिडेंट जॉनसन थे वहाँ पे, क्योंकि कैनेडी हैड गॉट असैसिनेटेड, सो जॉनसन वाज द वाइस प्रेसिडेंट, ही टुक ओवर, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। तो हमारे यहाँ एक जर्नलिस्ट होते थे इंद्रजीत, बाद में राज्यसभा के मेंबर भी रहे, तो उन्होंने उठ करके पूछा कि साहब आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो नॉर्मल फिनोमेना होता है तारीख में, यहाँ पे भी तो है, अटलांटिका है, जॉर्जिया है, ये भी तो सारे जोड़ के ही अमेरिका बना है। तो जब उन्होंने ये बात कही तो जॉनसन लॉस्ट हिज कूल, लुक हियर जेंटलमैन, वी डोंट ओपन क्लोज चैप्टर्स, इट्स अ क्लोज चैप्टर। हम यहाँ चैप्टर खोलते ही क्लोज है, क्योंकि अब नया चैप्टर नहीं मिला तो पिछला खोलो। सो वी केप्ट ऑन हार्पिंग। लोग कहते रहे इशू इशू इशू, तो हम उनका जवाब देते रहे, ये नहीं कहते रहे कोई इशू नहीं, हम उनका जवाब देते रहे क्यों इशू नहीं। और हम साथ में ये भी कहते रहे हैं 30-35 साल। What I'm trying to say is that the recent sequence of events, the whole vindication of what me and many of others like us have been talking about. हम ये भी कहते रहे कि मिलिटेंसी इन कश्मीर इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट। वो इसलिए खत्म नहीं हो रही थी कि वो चाहते ही नहीं थे खत्म करने वाले। There was a dubious nexus between a section of polity, sorry to say, also new rich class, जो कल तक कुछ नहीं थे आज कहाँ के कहाँ पहुंच गए। जब कश्मीरी पंडित एक्सोडस हुआ तो आपके जो हमसाए थे उनकी उस समय क्या दशा थी और अब क्या है। एंड ऑल्सो linked with that nexus is the foreign sponsors. तो ये तीनों nexus का एक बिजनेस, एक ट्रेड, एक इंडस्ट्री बन गई। सो दिस वाज मर्सेंटरी नाउ। और दूसरा, जब हमने कहा कि टेररिस्ट इज द बिगेस्ट वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, जब मैंने 1990 में लिखा तो बोले साहब वो अमानुल्लाह खान साहब टेररिस्ट बनाते हैं, उसमें आपका नाम आ जाएगा। फिर एक हमारी ह्यूमन राइट सो कॉल्ड लॉबी ने कोर्ट में कर दिया, हाई कोर्ट में, कि जी ये जो सटायर पीस लिखते हैं इसमें हमारी ओर इशारा है। तो वो जानते हैं, बड़े हमारे लीडर थे ह्यूमन राइट्स के, अब उनका नाम क्या लेना रहे नहीं है? नहीं, पूरी साल। तो वो हमने कहा साहब, हमारे वकील ने कहा कि कहीं नाम नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो आप कैसे कह रहे हैं? बोले नहीं, ये स्टाइल ऐसा है कि यह इशारा हम पर है। तो मैंने अगली ही बार एक राइट अप किया और उसमें मैंने एक शेर लिखा। मैंने कहा एक दिन आएगा हमारे, हम विंडिकेट हो गए और फिर हम ये शेर बोलेंगे कि जब इजहारे तमन्ना पर कड़ती थी ज़बानें, उस वक्त कहाँ थे ये अंदाजे ब्याह वाले। ये जो अभी अंदाजे ब्याह आज सिखा रहे हैं, ये दुनिया के आगे कबूल हो जाएगी। यही अंदाज ठीक था। जैसे एक बार पार्लियामेंट में वाजपेयी जी ने कुछ कहा कि आई एम फीलिंग डिस्गस्टेड कि सोनिया जी ने इस तरह का बयान दिया कि इतनी भ्रष्ट सरकार है ये वो। तो दूसरे दिन कांग्रेस के एक नेता ने उनसे कहा कि सोनिया जी को आपका अंदाज अच्छा नहीं लगा, थोड़ा उन्होंने फील किया। तो उनको कहना पंडित जी को मेरा यही अंदाज पसंद था। तो आज हमारा अंदाजे ब्याह विंडिकेट हुआ है। सो परमात्मा, एवरी क्लाउड हैज ए dark cloud has a silver lining. So this is a vindication, though we have paid a huge price for that. And the tragedy of this clan of ours, these like-minded thinkers who have consistently followed this, in spite of all the hostility, in spite of all the adversities, in spite of the risk of losing out on many things, and in spite of risk of not being able to gain what others could have gained. हमारे क्लैन का ये रिस्क रहा कि कई सालों तक हिंदुस्तान में, अब थोड़ा बदलने लगा,
एक ये चल रहा कि इंटेलेक्चुअल होने के लिए आपको एंटी इंडिया डिस्कोर्स करना पड़ता है। फिर लगता है कि हाँ देखिए कितनी गहरी सोच है कि मुल्क के खिलाफ भी बोल सकता है। और हम जैसे मूर्ख इसको तो सिखाया देशभक्ति देशभक्ति देशभक्ति, बचपन में भी वही पढ़ा, माँ बाप ने बस वही बोलता है, रटा रटाया, इसको कुछ अपनी समझ नहीं है। अपनी समझ तब आती है बाबा मुल्क है कि नहीं है, कहाँ है। एंड देयरफॉर आई एम ग्लैड वेरी अर्ली आई reconciled that I and others like me will never be accepted or acknowledged or categorized as intellectuals, and we preferred not to be so. ऐसे इंटेलेक्चुअल से नॉन इंटेलेक्चुअल होना बेहतर है। तो साहिल लुधियानवी ने लिखा कि ये वो बच्चे को कहता है कि अच्छा है अभी तेरा कोई नाम नहीं है, तेरा अभी तक किसी मजहब से तेरा कोई काम नहीं है, जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तो थैंक गॉड वी वर नॉट इंटेलेक्चुअल्स। इंटेलेक्चुअल होते तो हम भी ह्यूमन राइट की बात करना शुरू कर देते, हम भी कहते मुज़ाकरात करो, हदबंदी कहाँ है। लेकिन वी प्रिफर टू टो द लाइन आई समटाइम्स वी आर वेरी ब्लेस्ड। हमारा मजाक भी उड़ाया गया कई बार के साहब ये पढ़ लिख करके कहाँ फंस गए। लेकिन ये है कि I think we are all blessed that we could consistently follow this line, and today, thanks to Prime Minister Modi and the willpower of this government, this vindication is coming. Now, before I conclude as far as Operation Sindoor is concerned, and that makes the topical part of it in today's context. Operation Sindoor से दो broadly aspects हमारे सर हुए. It has changed India's discourse, both politically as well as diplomatically. और उससे वो इस वजह से हुआ कि प्रधानमंत्री बनने के बाद, खासतौर से पुलवामा के बाद, Prime Minister Modi gave the defense forces full freedom to act professionally, depending on their discretion, depending on the requirement of circumstances, as and when required, without any political consideration. अदरवाइज आप 2014 से पहले के जितने भी हमारे कोर कमांडर्स रहे हैं सबसे पूछिए, एक हिदायत थी, द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दैट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट ऑफ एग्रेशन और रिटॉर्ट यू हैड टू सीक सैंक्शन फ्रॉम और अप्रूवल फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडरशिप इन दिल्ली। उसमें वक्त भी लगता था और कभी कभी पॉलिटिकल लीडरशिप की कंसिडरेशन कुछ और होती है, क्योंकि वो वहाँ पर स्पॉट पर नहीं बैठे होते और उनको अपनी जान माल का खतरा भी नहीं होता। और ये जो हम देख रहे हैं ये इसी का नतीजा है। तो एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ कि यू कुड बी एक्टिव नॉट रिएक्टिव, कि ये नहीं है कि जब गोली लगे तो तभी चलानी है। अगर आपको पता है कि गोली मारने वाला बैठा है तो पहले गोली चला के उसको किस्सा ही खत्म कर। एंड थर्ड इज दैट यू डोंट हैव टू इंडल्ज इन नी जर्क रिस्पॉन्सेस। यू कैन प्लान, यू कैन चूज योर टाइमिंग, यू कैन चूज योर प्लेस। और वही ऑपरेशन सिंदूर से हुआ। लोग कहते रहे साहब कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, जब किया तो दुनिया ने देखा। लोग जब सुबह उठे तो पता चला। एंड देयरफॉर व्हाट वाज हेरल्डेड विद पुलवामा, द न्यू अप्रोच ऑफ दिस गवर्नमेंट इज फाइंडिंग इट्स सीक्वल इन ऑपरेशन सिंदूर। एंड एज वाज राइटली मेंशन्ड बाय डॉक्टर रत्नू, in today's world of technology driven warfare, this was a beautiful showcasing of what all India has. अब पार्लियामेंट में हर सेशन में गिनवाता था, और बस ये लोग कहते हुए तो साहब, क्योंकि उनको आदत पड़ी है पिछले जमाने की, प्री 2014 की, नॉट दी मोदी era। अच्छा हुआ परमात्मा जो करता है अच्छा करता है। मैं अभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे मेरे 50-60 किलोमीटर का एरिया मेरा पड़ता है, मैं अभी परसों तक वहीं था। और वहां जाते ही वो लोग दे फीलिंग सो सिक्योर, दे कॉन्फिडेंस मॉरल सो हाई, क्योंकि उन्हें मालूम है जो ऊपर से बम आता है वो नीचे पहुंचने तक ही भस्म हो जाता है। वो तो कह रहे थे साहब 2-4 दिन और चलता तो हमारा काम ही किस्सा ही खत्म हो जाता। दैट लेवल ऑफ मॉरल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस डिड नॉट एग्जिस्ट अर्लियर। तो मैंने उनसे भी यही बात कही, मैंने कहा भाई अब तो समझ गए ना, ये सब 10 साल में है। एंड आई वुड कॉल अपॉन सम गुड एनालिसिस टू डू सम रिसर्च, because there is evidence what I am saying। 2014 से पहले तो वहां की हुकूमत है ना, तब तक तो जहाज खरीदने भी बंद कर दिए थे।
थोड़ा बहुत हमारा इंपोर्ट होता था. Today, entire technology which came into play during these 3-4 days is indigenous. It has been developed in India. Even TOTs जो हुए हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, उसके बाद डेवलप यहाँ हुआ. एंड दैट वे I am proud to say, as a part of this dispensation, we have also lived up to Modi's goal of Atmanirbhar Bharat. उसका भी प्रदर्शन मुजाहरा अब हुआ कि हम आत्मनिर्भर भी हैं, सक्षम भी हैं, और सिर्फ इसी में नहीं. On the one hand, the borders were being taken care of. On the other hand, border dwellers. 2014 से पहले हम कई बार प्रदर्शन करते थे कि जब भी सीमा के पास गोलीबारी होती, कई बार हम सरकार के पास गए कि वहाँ सड़कें नहीं, तो वो कहते साहब सड़कें नहीं बनाई जाती, ये एक पॉलिसी है, सीमा के ऊपर सड़कें नहीं बनाती कि वो फौज को आसानी हो जाएगी दुश्मन को अंदर आने में. फिर जब 2014 में सरकार बनी तो हम, उस समय रक्षा मंत्री पहले जेटली जी थे, उसके बाद पर्रिकर साहब गए, तो मैं और रणवीर के साथ अच्छे हमारे संबंध थे. तो मैंने उनको कहा सर कि अंग्रेजों के ज़माने की बात है, जब घोड़ों पे चढ़ करके फौजी आती थी जैसे आप मुगल आजम में देखते हैं. अब हवाई युद्ध का ज़माना है, कौन सी सड़क के जरिए आएगा, तो ये क्या लॉजिक है. एंड देन इन दीज 10 years, एंड आई विश आई इन्वाइट यू बिकॉज यू कम टू माई कॉन्स्टिट्यूएंसी, यू मस्ट विजिट. परसों वहाँ पर 2-4 नौजवान तकरीर कर रहे थे, उसका वीडियो हमने रिकॉर्ड किया. मैं किधर, वो कह रहा है साहब ऐसी सड़कें हमारी 0 लाइन तक बन गई कि हाईवे से भी ज़्यादा सुंदर है. BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को हिदायत दी गई, 0 लाइन तक हमारी सड़कें. मोबाइल टावर नहीं थे, बोले साहब ये भी नहीं बनते क्योंकि यहाँ की आवाज़ वहाँ जाएगी दुश्मन को, वो तो हर चीज़ में दुश्मन. फिर हम अब 4-5 साल पहले फिर से हमने ये बात जब सरकार पे रखी कि साहब आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई है, यू कैन ब्लॉक दी सिग्नल्स. मैंने उनको एक मिसाल दी, मैंने कहा जैसे प्राइवेट कंपनी एयरटेल, वो गिरधारी लाल जी के घर को सिग्नल देगी, सर्वर उपलब्ध कराएगा तो आपसे बिल लेगा, लेकिन वही सिग्नल अगर 10 और घरों में जाएगा तो फिर तो इसका नुकसान हो गया, पैसे कैसे देगा. वो गिरधारी लाल के घर में सिग्नल देता है और अजय भारती का ब्लॉक कर देता है, कहता है 2 नाम है फिर 2 बिल लूंगा. प्राइवेट कंपनी करती है ना ऐसा. मैंने यही प्रिसाइजली कहा, मैं साहब अगर प्राइवेट कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी है तो हमें बस, तो फिर ये बात बनी. आज 0 लाइन तक मोबाइल टावर है. मैंने कहा आजकल सिविल सर्विसेज का इम्तहान भी मोबाइल से होता है. तभी आपकी पुंछ की एक बेटी BA के बाद पहली अटेम्प्ट में 11वें दर्जे पर ऑल इंडिया आई, कोई कोचिंग नहीं, कोई कोचिंग सेंटर. तो हमने कहा वाई आर वी डिप्राइविंग दीज चिल्ड्रन. एंड आई विश, हम कोशिश कर रहे हैं बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने की. You must make a visit there to see the change that has happened. And this sequence of events gave us an opportunity to highlight these changes. Family bunkers भी इसी दौरान बने, which are better than the one-room apartments. इस बार क्या हुआ कि ज़्यादातर हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पर बने, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है, क्योंकि हमने पहले इनिशिएटिव ले ली था, अब मांग आने लगी उड़ी वगैरह से, वो लोग बाहर ही नहीं गए. They refused going to other relief camps or relief shelters. क्योंकि दे फेल्ट मोर कंफर्टेबल और मोर सिक्योर देयर. बिल्कुल आधुनिक किस्म के, वहाँ बिजली की सप्लाई भी है. अब हमने जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का बंकर, हमने एड्रेस भी दे दिया, बंकर नंबर 1 उनको GP टैग कर दिया कि अगर महीना डेढ़ रहना पड़े तो कोई चिट्ठी संदेश व्हाट्सएप कैसे पहुँचाना. यानी टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन सो हाई नाउ, इट्स अप टू अस हाउ मच वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड पुट इट टू यूज. एंड देयरफॉर बिफोर आई कंक्लूड, आई थिंक देयर आर मैसेजिंग नाउ as of today is at 3 levels. Domestically, to convince our countrymen, they look here, now India is ready to play the role of a global leader. चाहे हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी. B, to Pakistan, जो मेरे से पहले वहाँ की पूर्व विदेश मंत्री कह चुकी है कि इंडिया ऑफ टुडे इज नो लॉन्गर द इंडिया ऑफ 1965 और 1975. तो हम उस गलत फहमी में ना उलझें. और इंटरनेशनली 3 important messages that India today is a force to reckon with. 1, India today is a rising economy which nobody can stop. ये जो हमारी मुखालफत करते हैं, चाहे मॉनेटरी फंड वाले क्यों करते हैं,
वो इसीलिए कि उनको लगता है कि एक बहुत बड़ा जायंट उभर करके सामने आ रहा है। एंड तीसरा कि इंडियाज क्रेडिबिलिटी डिप्लोमेटिकली हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, पर्टिकुलरली आफ्टर दिस फियास्को जो ट्रंप का हुआ। Across the world, people are ready to trust what India has said, not what others are saying. And therefore, my last word would be that the next destination for India is Viksit Bharat 2047. And the next agenda would be POJK, which also can happen only and only through Modi.